Well, I did question number 7. Let me see if I have done some more questions for you. Now in the next slot, in the questions from 9 to 22, write the function in the form y equal to f of u and u equal to gx. Previously, the author gave you the question in this bifurcated form. He separately gave you y as a function of u and u as a function of gx. But now he is giving you the composite function together and he's asking you to separate the two functions. तो वो कैसे लेके बनाना है? See here. Then find dy or dx as a function of x. See, this is question number 14. Y whole square root of 3x square minus 4 plus 6. Under root means whole power 1 by 2. Okay? So rewriting this question in this form. 3x square minus 4x plus 6 whole power 1 by 2. अब ये जो नीचे वाला सारा कुछ है इसको आप u assume कर लें तो y will become u power half. देखा इसे ये आपको खुद बनाना होगा और फिर u क्या आपने assume किया है all this trigonometric function algebraic function in the bracket 3x square minus 4x plus 6 ये आपका algebraic function है इसको आपने u रख लिया है so the moment you are putting here for all these terms as u so the whole power is becoming 1 by 2 so this given function has been now written as a two different functions y as a function of u and u as a function of x. Now as we did the previous 3 questions in the same style we'll proceed here. Differentiate y with respect to u because y is a function of u. So dy over du will be equal to power will become as a coefficient, then you'll write the function u and power minus 1. Remember 1 by 2 minus 1 is equal to minus half. These petty calculations must be done easily in your minds. But if at all you think there is some difficulty, then use your calculators. Okay, 1 minus half, half minus 1, power minus 1 means half minus 1 will be equal to minus half. If power is minus half, you can bring it in the denominator, it will become plus half. U power half means under root u. So remember, derivative of under root u will become 1 over 2 under root u. Okay. And now for u, we differentiate this with respect to x. Du upon dx will be equal to, bring this power as a coefficient 3 to the 6x. And the derivative of minus 4x will be minus 4 and the derivative of the constant will be 0. So in the next shell you will be left with du upon dx equal to 6x minus 4. Now apply the chain rule, dy over dx, you know, dy upon du into du upon dx. This is the Leibniz notation. Put these two values, dy over du is 1 upon 2 under root u, you have just calculated. And similarly, du upon dx is 6x minus 4, you put here. But I told you, the answer should not be an amalgamation of x term and u term. Always put the value of u back. What is u? You assume u as 3x square minus 4x plus 6. So put the value of u here. 1 upon 2 into 3x square minus 4x plus 6. And 6x minus 4 will remain present in its numerator. G. Got it? आपको बात समझ में आ गई? Anybody having any question in question number 14? Any question in question number 14? Okay, then I proceed to question number 22. Look here.
y इक्वल टू e पावर 4 रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो चीज डिफिकल्ट नजर आती है उसको आप यू रख लिया करें। तो आई एम एज्यूमिंग ऑल दिस होल पावर एज यू। ये देखिए u इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एज्यूम दिस मच। तो y will become equal to e power u, and u is further 4 under root x plus x. And now we differentiate these two functions. dy over du, e power x बताया था मैंने, it remains e power x. So similarly e power u will remain e power u. Okay, this is the derivative. And for u as a function of x, you differentiate dy over dx, 4 as it is. And I told you the derivative of under root x, अभी थोड़ी देर पहले किया था, 1 upon 2 root x, just little bit before in the previous question. The derivative of under root x will be 1 upon 2 under root x. 4 is there in the numerator, 2 will be cancelled, and the derivative of x square will become 2x. You know, simplify कीजिए, 2 in the numerator, under root x in the denominator, and 2x the second term. This is the derivative of du upon dx, and this e power u is the derivative dy upon du. Substitute these two values in the chain rule. Chain rule says that dy over dx is equal to dy upon du into du upon dx. Dy upon du is this value e power u, and du upon dx is this much, 2 root x plus 2x. ये रख दिया आपने। I told you answer u और x दोनों में नहीं होना चाहिए, so you replace back the value of u. u हमने क्या रखा हुआ है? This value is to be substituted here. So e power 4 root x plus x square as power, and this is its derivative here. So is your answer, gentlemen? Any problem to anybody? The next slot 23 to 50, सभी में डेरिवेटिव निकालने हैं, थोड़ा थोड़ा सब चेंज कर रहा है स्टाइल अपना। Now look here, the author in this case is giving you not y is a function of x, he is giving you s as a function of t. Okay, and you have to differentiate it with respect to t. The function is s is equal to 4 by 3 pi sine 3t plus 4 over 5 pi cos of 5t. Damn simple. देखिए अभी तक आपने शायद sin 3t और cos 5t इनका डेरिवेटिव नहीं सीखा, ये सीख लीजिए यहाँ पर। sin t का डेरिवेटिव होता है ना cos t, ये जो भी एंगल है, ये 3 इज ए मल्टीपल ऑफ t, तो ये इसका एंगल कहलाता है। sin 3t मींस 3t इज द एंगल ऑफ sin। तो तरीकाकार क्या होता है, इसका डेरिवेटिव लीजिए और उसके डेरिवेटिव एंगल के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए 4 by 3 पाई एज इट इज, इसको तो मैंने नहीं छेड़ा। sin 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा cos 3t, और एंगल का डेरिवेटिव 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, वो मैंने शुरू में लिख दिया। दिस इज द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। sin 3t का डेरिवेटिव आएगा 3 times cos 3t। इसी तरह यहाँ ये 4 by 5 पाई एज इट इज कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ब्रैकेट में मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, cos 5t को डिफरेंशिएट कीजिए। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 5t, ये लिख दिया मैंने माइनस साइन 5t। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 5t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5, तो माइनस के बाद लिखिए माइनस 5 साइन 5t। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, या 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 by pi cos 3t minus again 4 by pi sin 5t. Any difficulty to anybody? नहीं है ना? So doing question number 34 in front of you is a screen. देखिए ये important question आ रहे हैं आपके सामने, जरा सा thought provoking भी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप दिमाग आपको लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में होने चाहिए, which I think, अब और से सुन लो।
Gentlemen, this question number 34 is y equal to 2x minus 5 power minus 1 and x square minus 5x power 6 is given to you. So as the functions are given as a product form, so you take one function as u, another as v, and then take their derivatives and put them in the formula of product rule. So u I am taking as 2x minus 5 power minus 1 and v the second function x square minus 5 whole power 6. कुछ गलत हो गया. Here is x also, so you must write x. देखिए ये मुझसे मिस हो गया यहाँ पे x. आप x लगा लीजिए. या फिर यहाँ से x को हटा दीजिए क्वेश्चंस. Because I have got it missed, तो यहाँ से हटा दीजिए. बाकी को कर लीजिए. तो u डैश क्या होगा? पावर इधर फंक्शन और पावर माइनस 1 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 2x का 2. एक कानून याद रखिएगा, आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n x पावर n माइनस 1. इसको जरा जनरलाइज कर रहा हूं मैं, देखिएगा. ax प्लस बी, अब सम ऑफ द टू टर्म्स या थ्री टर्म्स होगा और उसकी पावर n है, तो हम क्या करेंगे? पावर देन फंक्शन पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. वो फंक्शन क्या होता है? ax प्लस बी. ये मैंने पहले लास्ट टाइम भी बताया था आपको. तो ये है जनरलाइज्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हम जनरलाइज्ड फॉर्म यूज करें. पावर हियर देन फंक्शन देन पावर माइनस 1 माइनस 2 हो गया. फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2x का 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2. तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें माइनस 2 2x माइनस 5 पावर माइनस 2. अगर इसको आप v ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर इज 6 देन फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 5 पावर माइनस 1 किया 5 हो गया. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x 5 का 0 हो जाएगा. जी पूछिए. नेहा खान कौन है? नेहा इज इन अवर क्लास. जी नेहा इज नॉट इन अवर क्लास. ये कहां से आ गई लड़की? हु इज नेहा खान? जी सीआर. सीआर कहाँ है? नान्याल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? हेलो, सबकी आवाजें भी बंद है. Is the screen being shared by you or not? Hello, students. जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नया नहीं अपनी क्लास में. यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर. नया नहीं है क्लास में. कोई लड़का आईडी चेंज करके आया हुआ है. ये हमारी क्लास पे नया नाम की लड़की कोई ऐसे नहीं. बदतमीज लोगों को आप कोई इलाज कर सकते हैं कि नहीं? ये हमेशा एवरी टाइम ही इज कमिंग. नोमान, ये सर इसका क्या ये हो नाम सकता है? है कि ब्लॉक कर दी जाए. दानियल ये मेरे नाम से आया हुआ है यार. ये पता नहीं कौन है. देख इसको. इसको जरा, इसको आप लोग कर सकते हो दानियाल, इसको आप पकड़ो. सर वो होस्ट ही रिमूव कर सकता है. वो तो है होस्ट रिमूव कर सकता है पार्टिसिपेंट में जाके. बताओ, ये मैं तुम्हें फिर से होस्ट बनाऊं अभी? सर इसको होस्ट बना दे दानियाल को.
दानिया तुम्हारा नाम ऊपर आ गया। सर नाम ऊपर है मेरा, सबसे ऊपर हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, अब क्या करूं मैं? सर होस्ट बना दे, मैं मीटिंग लॉग कर देता हूँ, इसको आउट भी कर दूंगा। कैसे बना दूं यही तो बताओ। यहाँ पे क्या, किसको क्लिक करूं? सर सर इसके नाम पे क्लिक करें, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा। यस आएगा? सर। सर नाम पे क्लिक करेंगे ना, मोर पे जाएंगे तो मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा। नाम को मैंने क्लिक किया। सर मेक होस्ट कर दें। मेक होस्ट का तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ना। सर साइड पे कर्सर बना हुआ है, मोर का ऑप्शन है, उस पे जाके होगा। अच्छा, चलो बन गया। नंदन ये बन गया तुम्हारा होस्ट। धन्यवाद। बन गए, वो बन गए। तो अब इसको पकड़ो। हु इज दिस कल्प्रेट? सर रिमूव कर दिया मैंने मीटिंग से सर उसको। बस इसको जूते भी मारो, अगर ये हाथ कभी आ जाए ना, इतने जूते मारो ना, इसमें पड़ना है। चलिए, मैं आपसे डिस्कस कुछ और कर रहा था। कहानी हमेशा रोजाना ये वक्त जाया करते हैं लोग आके। तो तुम्हें होस्ट बना दी। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आवाज आ रही है। यस सर। स्क्रीन कहाँ गायब हो गई ये बताओ। अब ये भी गायब हो गई ना। यार हो गई स्क्रीन तो। अब आ रही है स्क्रीन आपको? हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है। स्क्रीन पे कुछ नजर भी आ रहा है? जी सर आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा है स्क्रीन पर, शेयरिंग पे। तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा, क्यों? अब आ रहा है? हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। जल्दी यस सर। बताया करो ना, 1 घंटे से पूछ रहा हूँ। आ रही है बोल रही थी। ओके, चलो मैंने u और v डैश की वैल्यूज निकाल दी आपके सामने। ठीक है, ये u है, v डैश उठा के प्रोडक्ट रूल में रख दो बस, और डिफरेंशिएट कर दो। अब सबको डिफरेंशिएट करके यहाँ रख दिया। फिर मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, देखो ये 12 और 2 में से 2 आ जाएगा। इसकी पावर जो छोटी होती है ना वो बाहर आती है। -2 छोटा है -1 से, ये बाहर आ गया। ये 5 छोटा है 6 से, लिहाजा ये टर्म की पावर 5 बाहर आ गई। अब इस टर्म को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 2 6 12, 6 आ गया। यहाँ पे x भी आना चाहिए। ये टर्म बाहर निकली है, ये बड़ी टर्म बाहर निकली, तो इसकी किसी एक पावर है तो पावर 1 बचेगी 1। ठीक है, और ये पूरी टर्म बाहर निकल गई। -2, ये टर्म पूरी की पूरी बाहर निकल गई है। ठीक है ना, और 6 में से 5 बाहर निकल गई तो एक पावर इसकी बच जाएगी। तो इस टर्म ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। इन ब्रैकेट्स को खोल दें और यू विल गेट द आंसर। छोड़ें, क्वेश्चन नंबर 39 भी मैं करा रहा हूँ, आप देख लीजिए। hx is equal to x tangent to √x plus 7. Here it is product of two functions. Differentiate with respect to x. So dh upon dx, first function as it is,
अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टेंजेंट टू रूट एक्स का। तो टेंजेंट का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर दिस मच, और इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है। तो मैंने कहा था इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ अलग निकाल के रखा है। 2 को तो ऐसे रहने देंगे 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स को जब आप ऊपर लाएंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी -12। देखो नीचे लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, ऊपर गया -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, पावर इधर आएगी -12 एक्स की पावर -3/2, और -3/2 को फिर नीचे ले जाकर रखेंगे तो +3/2 हो जाएगी। तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बनेगा -1/2 एक्स पावर 3/2, दैट आई हैव रिटन हियर। तो टेंजेंट का डेफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ द एंगल, और फिर एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। एक मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं कहूं कि sin 2x इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x, और फिर एंगल क्या है 2x, उसका डेरिवेटिव भी आएगा 2, वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, ये बन जाएगा 2 cos 2x। इसी तरह हमने यहाँ पे एंगल का जो डेरिवेटिव लिया ना 2 और रूट एक्स, दिस वाज द एंगल, इट्स डेरिवेटिव इज दिस, और ये मैंने इसकी डिटेल यहाँ कर दी आपके लिए। The first function as it is, the derivative of the second is written here, plus अब second function is as it is, tangent 2 over root x, और first का derivative हो जाएगा 1, और +7 constant है, इसका derivative क्या हो जाएगा 0। I am writing 0 also so that आपको पता चले वो 7 कहाँ गया, 7 0 हो गया, ठीक है। तो first function as it is, derivative of the second plus second as it is, and the derivative of the first, ये वैसे ही u v dash plus v u dash। अब इनको जरा सिंप्लीफाई कर लें, जो चीजें फैक्टरिंग काट दें। x ये चीज जो है वो एंगल में नहीं है, याद रखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ द एंगल जो आपने निकाला है ना, वो अब इसका एंगल का हिस्सा नहीं है। सेकेंड स्क्वायर 2x ये तो इसका एंगल है, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप पहले लिख लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया, और ये है 1/3/2, और ऊपर x है और नीचे 3/2x। तो जब आप सब काटोगे ना, x की पावर 1 है और नीचे 3/2, ये x नीचे जाके -1 हो जाएगा। तो 3/2 -1 क्या बचेगा 1/2। तो इस x को और इसको जब आपने कैंसिल किया तो आंसर आ गया x की पावर 1/2। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो सुन लो, यहाँ x की पावर क्या है 1, जब ये नीचे जाएगी तो 3/2 और -1 हो जाएगा। 3/2 -1 क्या बनेगा 1/2, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर 2 और रूट एक्स ऐसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव ये भी ऐसे ही रहा, कुछ नहीं किया हमने, दैट्स इट। 1/2 पावर की जगह आप अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ दें चाहे ऐसे लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलिए। हेलो, अब ये देखो, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आर यू लिसनिंग Yes, माय sir, वॉइस? सर आवाज आ रही आ रही है ना? हाँ, जवाब दे दिया करो भाई, ऐसे लगता है मेरी आवाज बंद हो गई। ये क्वेश्चन 44 में जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ। देखिए GT और ये 1 + sin 3t/3 - 2, इसकी पावर -1 है। दो तरीके हो सकते हैं, इसको मैं u रख दूं तो u की पावर -1, और फिर आगे u जो है इसका फंक्शन 1। ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। पावर हमेशा इधर आ जाती है कोफिशिएंट, फिर फंक्शन, ये फंक्शन है पूरा जो कुछ ब्रैकेट में लिखना है। तो पावर फंक्शन पावर -1 तो क्या हो जाएगा -1, और फिर -1 ये हो जाएगा -2, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी अब हम पावर को भूल जाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेंगे, यानी डी ओवर डी टी, ये जो फंक्शन है आपका, फॉरगेट अबाउट द पावर नाउ। ये अब इसको तो हमने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रहने दें, और डेरिवेटिव हमने इसका लेना है। तो ये u/v लगेगा, नीचे आ जाएगा v², ये v है 3 - 2t, तो v ऐसे लिखा जाता है, और डेरिवेटिव होता है u, ये 0 हो जाएगा 1 का, और इसका sin 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3t × 3, तो 3 मैं पहले लिखा हूँ, 3 cos 3t माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा ये 0 और -2 इनको खोल लें ब्रैकेट्स को, 3 से मल्टीप्लाई करें 9 cos 3t, फिर ये -2 से करेंगे -6t cos 3t, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए,
इसको मल्टीप्लाई करें -2 हो जाएगा, तो बाहर भी माइनस है, प्लस बन गया 2, यानी इस माइनस को इस माइनस से मुक्त कर दें, +2 हो गया, फिर 2 3 sin 2 sin 3, ये ब्रैकेट में आ गया। नीचे वाले फंक्शन को मैंने कहा था ना, इसका स्क्वायर मत खोला करें, ऐसे ही रहने दो। ये वैल्यू ऐसे ही रख दी। अच्छा अब देखें 3 - 2 की पावर यहाँ पे -2 है, ऊपर वाली और नीचे वाली अलग अलग कर दी मैंने, ठीक, पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। ये नीचे वाला -2 और ये +2, जब दोनों ऐड होंगे पावर 0 हो जाएगी, और एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये दोनों गायब हो गए एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर, तो बस ये आ गया ऊपर, और ये जो ऊपर ब्रैकेट में बचा ये बच गया हमारे पास। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीबॉडी? और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50, 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव है, तो मैंने कहा था 3 में से 2 को वैसे ही रख लें, एक को डिफरेंशिएट करें। पहले हमने आखिर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर दरमियान वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट किया। ये ऐसा एक सवाल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, ठीक है जनाब। अब मैं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है? आगे आ रही है। आ रही है। देखो बच्चे बहुत सारा काम यस सर, आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन 63 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, कि माजी में भी मैंने बहुत दफा पेपर में दिया है, क्योंकि बच्चे ध्यान से नहीं सुनते। यहां तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा टिल क्वेश्चन 50, ठीक है, तो बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। अब आप अपना एक बड़ी बड़ी शीट उठा लें, ऊपर टॉप पे लिखिए क्विज नंबर 2, नीचे आप साइड पे नाम लिखें, अपना आईडी लिखें, नेक्स्ट वीक ले लेंगे, क्लास लिखें। आप मेरी बात पे अमल किया करें, मुझे अपने मशवरे मत दिया करें। सर नेक्स्ट वीक ले लें। आप लोगों को मैसेज किस लिए भेजा था मैंने? यस सर, नेक्स्ट वीक ले लें। नहीं होगा नेक्स्ट वीक नहीं होगा, सुन लिया? सर इस वीक सर इस वीक बहुत काम थे। देखिए आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है ना? नहीं, अगर आप मेरी बात पे अमल नहीं करेंगे, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, इसीलिए मैंने मैसेज भेजा था, गेट रेडी फॉर दैट। ये लिथार्जिक एटीट्यूड बंद कर दें। जब आप 2-4 दफा फेल होंगे ना, तो आपको अकल आ जाएगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप टीचर को मशवरा दें, आप टीचर का मशवरे पे अमल किया करें, सुन लिया? अपने अब्बा को मत बताया करें आपको क्या करना है, जब अब्बा आपको कहें वो किया करें। गंदी आदतें अपना रखी आप लोगों ने। रेगुलरली नहीं पढ़ना, टीचर से नेक्स्ट वीक कर। आपको फेल होने का मूड है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बता दिया गया है, समझा दिया गया है हर चीज, पढ़ना नहीं है आपको रेगुलरली। एट 3:30 योर क्विज स्टार्ट, और अगर आपने डिले किया ना, और इस दफा फिर मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे नहीं लूंगा क्विज, ये सुन लें, नो एक्सेप्टेंस ऑन व्हाट्सएप। अभी करें बैठ के। सर नेट मसला कर जाता है, इसी वजह से जो है वो आप बटन वहां से ना हटाया करें। हालांकि पूरी क्लास में 80% लोगों का, सबका नेट खराब हो जाता है। लास्ट टाइम 80% स्टूडेंट दे सेंट ऑन माय व्हाट्सएप। क्यों? पूरी क्लास पढ़ते हो रोजाना 3 घंटे, कोई नेट का मसला नहीं होता। जहां कुछ देना होता है नेट का मसला शुरू हो जाता है। कुछ एक आध का हो तो चलो एक्सेप्टेबल, वाई फॉर द होल क्लास? आप लोग बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कोई सोल्यूशन निकाल के मुझे भेजे, मैं सोल्यूशन फिर लिखूं, उसमें टाइम जाया होता है आप लोगों का मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। आप क्या समझते हैं टीचर को समझ नहीं आती? तुम लोग हरकतें क्या करते? और फिर डिट्टो जो आ गया वहां से वही उठा के सेम भेज दिया। एक एक बंदी की सिमिलर गलतियां, 4-5 बंदों की सेम। क्यों? अपने दिमाग से करो तो ऐसी होती है कभी? अपने गरेबान में झांक के देखा करो तुम लोग खुद क्या करते हो। चलिए शुरू कीजिए अपना। आपको कुछ नजर आ रहा है? सीआर टेल मी, कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, एलएमएस पे चेक आ गया ना? चलें शुरू कर दें। ऑल ऑफ यू, जिसको नहीं पढ़ना है ना, उसने कभी भी नहीं पढ़ना। आई हैव सिलेक्टेड वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी नहीं थे। नेक्स्ट वीक में आपका इंशाल्लाह मिड टर्म करवाएंगे, फिर देखते हैं क्या होगा।
Go through the question paper जो भी है. सर नेक्स्ट वीक Quiz आ रहा है, में या उससे नेक्स्ट वीक में? छोड़ दें आप, मिड टर्म को छोड़ दो, अब अपना क्विज सर करें. So any problem in the question paper? Hello? क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है सियार? यस सर. डिफिकल्टी है क्वेश्चन पेपर में कोई इसके अंदर? नहीं सर, नहीं है. नहीं अब आप लोग सर, आराम से कीजिए और मुझे कोई मैसेजेस मारने की जरूरत नहीं है कि सर फोन नहीं उठा रहे. मैं नहीं उठाऊंगा किसी का भी फोन. काम करें अपना सुकून से. ये 15 मिनट का क्वेश्चन क्विज होता है, आधा घंटे में आप आराम से करें और अगले आधा घंटा आपको दिए मैंने अपलोड करने के लिए. एक क्विज खुदा ना खासा 1 घंटे में अगर आपसे अपलोड नहीं होता है तो फिर आप लोग किसी काबिल लोग नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते. ट्राई टू फिनिश योर जॉब विद इन 1 आवर. अब इसके बाद इंतजार में जो लोग बैठे रहेंगे ना कि कोई जवाब भेजे, कोई सोल्यूशन दे, उनका टाइम खत्म हो जाएगा. टाइमर अप हो गया तो फिर यू कांट बी एबल टू सेंड इट. फिर मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है. नन ऑफ यू विल टेलीफोन में. सर वो आपसे बात करनी सर, वो अटेंडेंस लगा दीजिएगा सर. 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने वो अटेंडेंस के टाइम पर थोड़ा मिसिंग थे, उनका मसला आ रहा था, तो उन्होंने फिर बाद में ड्यूरिंग द लेक्चर आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इस वजह से अटेंडेंस लगा दीजिए उनकी. बताओ उनका नंबर क्या है? सर आयशा अजमत. उन्होंने तो दोनों सेशन में आवाज नहीं निकाली अपनी, क्यों? आयशा नहीं सर, इन्होंने मैसेज कर दिया था सर. आप अटेंडेंस ले रहे थे ना, आप अटेंडेंस ले रहे थे तो इन्होंने चैट में मैसेज कर दिया था उस टाइम. दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? सर एक जैन जाहिद है 11515. और इसके अलावा? और सर लास्ट में हमाद हुसैन है 11208. तो फिर एब्सेंट कौन रहा? कोई एब्सेंट बचा? गुलरुख खान एब्सेंट. गुलरुख खान एब्सेंट है. तो नहीं है वो भी गुलरुख खान एब्सेंट है. कैसे एब्सेंट है? उसने वो चैट मैसेज भेजा था ना. सर मैसेज तो उनका भी आया हुआ है, शुरू में उनका सबसे पहले मैसेज उनका ही आया हुआ है. हाँ फिर तो नो, नन ऑफ द पर्सन इज एब्सेंट. नहीं सर, सब सब यस सर, सब प्रेजेंट है. चलो ठीक है, अच्छी बात. So from my side, ये लेक्चर इज ओवर. कीप डूइंग इट. सबमिट कर लीजिएगा टाइम से. आप LMS पे सब लोग अपलोड करेंगे. अच्छा, मुझे व्हाट्सअप नहीं करना. एंड डोंट टेलीफोन मी नाउ. अब मैं इसको स्विच ऑफ करके सो रहा हूँ.
आपका फोन मुझे मिलेगा ही नहीं। मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करता हूँ, सुबह से उठा मैं फजर के टाइम से, तो आई एम गोइंग टू हैव अ लिटिल रेस्ट। अब आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करिएगा बीच में। थैंक यू। ओके, देन अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज़।